الحمد لله الذي أعز العلم في الأمصار وأعلى حزبه والأنصار والصلاة والسلام على نبيه المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بحظ جسيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم دوستو، ساتھیوں، بھائیوں اور عزیز طلباء کرام، حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتے رہنا چاہیے. اس سے ایک تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تیسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے انسانی زندگی بہتری کی طرف چل پڑتی ہے. اور پانچویں اس وجہ سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے جہالت کے اندھیرے، جہالت کی تاریکیاں ختم ہو کے علم کی روشنی آتی ہے. اس لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہمہ وقت اور اجتماعی محافل میں گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جس وقت بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ تو سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی کا پل پل، لمحہ لمحہ انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے. اس جہان کی زندگی آپ کی 63 برس ہے. 63 برسوں میں ہر سال اور ہر سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینہ
ہر مہینے کے 30 دنوں میں ہر دن اور ہر دن کے 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے کے 60 سیکنڈوں میں ہر منٹ اور ہر منٹ کا سیکنڈ آپ کا انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں جگہ بیٹھ گیا 2 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یار میرا سونے کا عمل 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے ہے، باقی وقت میں کام کرتا ہوں، لیکن آج میں 8 گھنٹے سویا، 2 گھنٹے میرے ضائع ہو گئے، یعنی 2 گھنٹے کی نیند ضائع، وہ 2 گھنٹے کا وقت ضائع ہو گیا۔ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، لیکن فلاں جگہ ٹریفک کی وجہ سے رکا تو میرے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ یہ باقی امتیوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند بھی رحمت ہے، آپ کی نیند بھی رحمت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی رحمت ہے، کھانا پینا بھی رحمت ہے، کہیں پہ رک گئے تو وہ بھی رحمت ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ اگر کسی وقت بیماری آئی تو وہ بیماری بھی امت کے لیے رحمت ہے، اس لیے آپ کی زندگی کا پل پل انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ ایک امتی کے لیے بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ مختصر وقت میں اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کے کس پہلو کو بیان کرے۔ تو آج میں اس مختصر سی نشست میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے صرف ایک پہلو پہ چند گزارشات پیش کروں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انسانوں کو علم کی روشنی پہنچانے کے لیے، علم سے آگاہی بخشنے کے لیے اور انسانوں کی جہالت مٹانے کے لیے کیا کیا محنت فرمائی اور کتنا شوق پیدا کیا۔ اس ماحول میں، جس ماحول کا تذکرہ کرتے وقت آج مورخ ایک ہی لفظ بولتا ہے کہ دور جہالت کی بات ہے۔ دیکھنا، جہالت تمام گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ میرے آقا نے جس ماحول میں جنم لیا وہ شرک کا ماحول تھا، لیکن مورخ یہ نہیں کہتا دور شرک کی بات ہے، وہ چوری ڈکیتی کا ماحول تھا، لیکن مورخ یہ نہیں کہتا چوری ڈکیتی کے دور کی بات ہے، وہ بدکاری فحاشی عریانی کا دور تھا، لیکن لکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ فحاشی عریانی کے دور کی بات ہے، وہ قتل و قتال کا دور تھا، لیکن لکھنے والا یہ نہیں لکھتا کہ قتل و قتال کے دور کی بات ہے، بلکہ وہ ایک لفظ ایسا بولتا ہے کہ جس میں یہ سارے گناہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دور جہالت کی بات ہے۔ جب اس نے کہا کہ دور جہالت کی بات ہے، شرک بھی اس میں آیا، قتل و قتال بھی اسی میں آیا، فحاشی عریانی بھی اسی میں آئی، شراب کباب کی محافل بھی اسی میں آئیں، دنیا بھر کا سارا گناہ اس میں آیا۔ تو اس ماحول میں
हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की शम्मे रोशन की, इल्म के चराग रोशन किए कि इस कौम की बुनियादी जरूरत इल्म है। कच्ची और पक्की आबादी में इल्म पहुंचा दो। हर अमीर और गरीब के घर इल्म के दिए जला दो। रब्बुल आलमीन को यही मंजूर था। इसलिए रब ताला ने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे जब पहली वही नाजिल फरमाई तो उस पहली वही में भी जिस चीज को बतौर खास जिक्र किया वो इल्म है, वो इल्म के जराए हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, दो हवालों से अल्लाह ने पहली वही में अपना तारुफ कराया। पहला तारुफ यह कराया, महबूब पढ़िए, यानी आपकी पूरी जिद्दोजहद और आपकी पूरी मेहनत उसका आगाज किरात से होगा, उसका आगाज पढ़ने से होगा। इक़रा पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से जो खालिक है। अल्लाह ने पहला तारुफ अपना कराया कि वो खालिक है, और अगला तारुफ कराया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। उस रब के नाम से पढ़िए जिसने तालीम दी कलम के जरिया। पहली वही में तालीम का जिक्र, नबी के पढ़ने का जिक्र, रब के पढ़ाने का जिक्र, सीखने का जिक्र, सिखाने का जिक्र। और सीखना सिखाना किस शय के जरिया? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कलम के जरिया, कलम का तस्करा। तो आप अलैहिस्सलाम की पूरी मेहनत का दारो मदार इल्म है, तालीम है। आज बड़े से बड़े इदारे वो फरोगे इल्म के लिए कोशा हैं। इंसानियत को सबसे ज्यादा इल्म से मुतारफ कराने वाली शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज दुनिया जितनी मर्जी इल्म के नाम पे दौड़ें लगा ले, लेकिन इल्म की हकीकी कोशिश, हकीकी मेहनत वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसे नई रोशनी का जमाना कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये भी जहालत की तरफ जा रहे हैं। आज लोगों ने इल्म जैसी नेमत को तिजारत बना दिया, कमर्शियल बना दिया। आज बेटे की तालीम शुरू करने के लिए सरपरस्त पहले सर जोड़ के बैठते हैं। बेटे ने मैट्रिक कर लिया है, अब इसको आगे किस शोबे में दाखिल कराएं। वो सोचते हैं अगर डॉक्टर बनाए तो ये महाना इतने कमा लेगा, इंजीनियर बनाए तो महाना इतने कमा लेगा, वकील बनाए तो महाना इतने कमा लेगा, और अगर इसको हम कंप्यूटर सिस्टम में डालें तो ये महाना इतने कमा लेगा, अगर हम इसको अकाउंटेंट में लाएं तो महाना इतनी तनख्वाह हो जाएगी। यानी शोबे हम बच्चे की तालीम के लिए तिजारत की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे नहीं कि इल्म तो इंसानों की जहालत खत्म करने के लिए आया था। हम अपने बेटे के जरिया कितनी जहालत मिटा सकते हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इल्म का शौक दिलाया, इतना दिलाया, इतना दिलाया, इतना कि मर्द तो मर्द, औरतों में भी शौक पैदा हो गया। औरतें भी इल्म सीखने वाली बन गईं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
علمی محنت کے 2-3 حوالے دے کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، شہر مدینہ میں داخل ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحابہ کرام نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آپ کے ایک جانثار وفادار نوکر خادم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، مکان کی چابیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مکان 2 منزلہ آپ کے لیے وقف ہے، اس مکان پہ آپ رہائش اختیار فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقیم ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رہائش کے ابھی ابتدائی دن ہی تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا مکان کے سامنے کچھ پلاٹ خالی پڑے ہیں، اور خالی پلاٹوں میں لوگ، کچھ پرانی قبریں تھیں، اور کچھ لوگ وہاں پہ آن کے کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کے پلاٹ ہیں؟ لوگوں نے بتایا 2 یتیم بچوں کے۔ آپ علیہ السلام نے ان بچوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ بیٹا ہم ان پلاٹوں کو خریدنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رہائش بنائیں گے، اپنا مکان بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو نصیبہ جاگ گیا، مقدر جاگ گیا، بھاگ جاگ گئے، بھاگ کہ آپ ہم سے جگہ مانگ رہے ہیں اور اپنی رہائش بنائیں تو تب بھی بھاگ جاگ گئے، اور اگر اللہ کا گھر بنائیں تو تب بھی بھاگ جاگ گئے۔ ہماری یتیمی کے دن کٹ گئے، یتیمی میں بڑی محرومی دیکھی، لیکن آپ نے جگہ مانگ لی تو ہماری محرومی دور ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ آپ کی، اللہ کا گھر بنائیے۔ لیکن میرے آقا نے اس جگہ کو فری میں نہیں لیا، ان کے جذبات کی قدر کی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن فرمایا بیٹا ہم پیسے دیں گے۔ پیسے دے کے جگہ خریدی، مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پہلا گھر اللہ کا بن رہا ہے شہر مدینہ میں۔ اب مسجد بنی، مسجد کچی، ابھی اس مسجد کی 4 دیواری بھی نہیں ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور درسگاہ وہاں بنانی شروع فرما دی۔ اس کے ایک علاقے، ایک کونے کے اندر آپ نے چبوترا بنایا، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تھڑا بنایا۔ تھڑا عام زمین سے کچھ اونچا ہوتا ہے۔ تھڑا بنا کے فرمایا یہاں لوگ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کریں گے، سیکھا کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اب وہاں لوگ آنے والے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیم کا وہ حصہ مرکز بن گیا، اور اس جگہ کا نام رکھا مقام صفہ۔ مقام صفہ، بہت پیارا نام، بہت پیارا۔ صفہ آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ صفہ کا معنی ہوتا ہے چنی ہوئی شے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ یہ بھی استفا صفہ سے ہے، یہ بھی چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنی ہوئی ہستی، کہ جسے اللہ نے چنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ، اور جو جگہ آپ نے انتخاب کی وہ جگہ مقام صفہ، آج بھی وہ جگہ قائم دائم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس وہاں تشریف فرماتے، اصحاب کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد ہوتا، آپ علم کے موتی نچھاور کرتے۔ اصحاب رسول اپنے دلوں کے پیالے کھول کے ان موتیوں کو سمیٹ رہے ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آج
मैं और आप खड़े हो के समंदर के किनारे पे ये जरूर कह सकते हैं, ये समंदर 100 मील लंबा है, 1000 मील लंबा है, यानी हम समंदरों की पैमाइशें कर सकते हैं, लेकिन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की पैमाइश कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने इतना आपको इल्म अता फरमाया, उस इल्म से आप एक लफ्ज बोलते, वो लफ्ज पूरे के पूरे समंदर को कूजे में बंद करने वाला होता। खुद आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे कुछ चीजें ऐसी अता फरमाई हैं जो साबिका उम्मतों में और साबिका नबियों में किसी को नहीं मिली। उनमें एक ये है, ऊती तो बेजवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम का मलका दिया। जवामिउल कलिम कहते हैं जुमला बोलने में छोटा हो, लफ्ज थोड़े हो, लेकिन इल्म का पूरा समंदर अपने अंदर लिए हुए हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दे रहे हैं। अब लोग आपकी खिदमत में, कोई यमन से, कोई यमामा से, कोई नजद से, कोई करन से, कोई शाम से, ये लोग आ रहे हैं, कोई रोम से, कोई ईरान से। आने वाले जो आ रहे हैं उनकी रंगतें अलग अलग, कबीले अलग अलग, जुबानें अलग अलग, कल्चर अलग अलग, सकाफत अलग अलग, तहजीब अलग अलग। आने वाले आ रहे हैं और फिर आने वालों का पस मंजर भी अलग अलग। कोई आ रहा है तख्त शाही से उतर के, और कोई आ रहा है बकरियां चराता हुआ, कोई आ रहा है ऊंटों का चरवाहा, और कोई आ रहा है सिपा सालारे कौम। आने वाले आ रहे हैं, किसी के जिस्म पे शाही लिबास है, और कोई आ रहा है फटी हुई गुदड़ी पहन के, कोई आ रहा है कीमती घोड़े पे सवार होके, और कोई आ रहा है पांव में चप्पल भी कोई नहीं। यूं आने वाले आ रहे हैं। कोई आ रहा है ईसाइयत का मारा हुआ, कोई आ रहा है यहूदियत का मारा हुआ, कोई आ रहा है मजूसियत का मारा हुआ। यूं दुनिया आ रही है इल्म के चश्मे पे, आ रही है इल्म के समंदर पे, और आके अपनी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कोई हफ्ते के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई महीने के लिए। ये मकाम यहां पे आने वालों की तादाद कभी 70 होती, कभी 80 होती, कभी 100 होती, कभी 300 होती। यहां आने वाले आके बैठे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। ये तालीम का हल्का, ये मकाम सुफ़ा का कॉलेज, ये इदारा, ये मदरसा, ये यूनिवर्सिटी इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल कि एक दिन पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में उन असहाब के जुर्मत में बैठे हुए हैं। मस्जिद के कोने पे एक औरत की आवाज आई। खातून की आवाज सुन के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे गए। आने वाली खातून ने अपना तारुफ कराया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम अस्मा है, कबीला अंसार से ताल्लुक रखती हूं, मेरे वालिद का नाम ये है। अपने वालिद का नाम भी बताया, कबीले का नाम भी बताया, शहर मदीना की वतनियत भी बतलाई, और बड़े सलीके के साथ गुफ्तगू कर रही है। गुफ्तगू के लिए 2 चीजें जरूर चाहिए, गुफ्तगू का सलीका भी हो और हिम्मत भी हो। बाज आदमियों में बात करने की हिम्मत नहीं होती, और बाज में हिम्मत होती है लेकिन उनको गुफ्तगू का सलीका नहीं होता, बात करने का तरीका नहीं होता, उनके पास अल्फाज नहीं होते, उनके पास बात करने का लबो लहजा ठीक नहीं होता। यूं लगता है जैसे लड़ाई कर रहे हों, या यूं लगता है जैसे ये झिड़क रहे हैं, डांट रहे हैं, ये लबो लहजा। तो 2 चीजें जरूरी, हिम्मत भी हो बात करने की और सलीका भी हो। उस औरत में ये दोनों चीजें थी, हिम्मत भी थी और सलीका भी था। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। मुझे दरअसल मदीना मुनव्वरा की औरतों ने भेजा है,
शहर मदीना में इल्म का चर्चा इतना होने लग गया है कि औरतें कहती हैं हम पीछे रह गईं, मर्द आगे निकल गए, हम महरूम रह गईं। मर्द गलबना अलैकर रिजाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मर्द गालिब आ गए आपके ऊपर और हम औरतें पीछे रह गई हैं। गलबना अलैकर रिजाल। आपने फरमाया बीबी किस बात में औरतें पीछे रह गईं? वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द आपके पास आन आन के इल्म सीखते हैं, मसले पूछते हैं, बातें पूछते हैं, यहां से जाते हैं तो इनका प्याला इल्म भरा होता है, छागल भरी होती है, और हम औरतें हाजिर नहीं हो सकती, हम पीछे रह गईं, हमें मौका नहीं मिलता। फिर क्या मुतालबा है आपका? उस खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, मदीना की औरतों ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, मुझे अपना तर्जमा बना के भेजा है कि अस्मा तू हिम्मत वाली है, सलीके वाली है, तू जाके बात कर, मैं हाजिर हुई हूं। औरतों का मुतालबा यह है कि हमारे लिए भी कोई दिन मुकर्रर किया जाए, उस दिन में हम हाजिर होके इल्म सीखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में मुस्तकिल उन्वान कायम किया है, हल युजअलु लिन्निसाए यौमुन अला हिद्दा, क्या औरतों के लिए अलग से कोई दिन मुकर्रर किया जा सकता है? फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अस्मा का मुतालबा लेके उसको रिवायत कर रहे हैं। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अलग दिन तय कर दिया, जगह तय कर दी, वहां जाके आप अलैहिस्सलाम उनको खुतबा देते, इल्म की बातें सिखाते। तो इल्म की शम्मा ऐसी रोशन हुई कि घर घर उससे रोशन होने लगा, जगमगाने लगा। बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आन आन के सीखने लग गए, पूछने लग गए, और आने वाले वक्तों में वही बच्चे बहुत बड़े जमाने के इमाम बने, जमाने के आलिम बने। जरा गौर तो कीजिए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने वाले बच्चे आने वाले वक्तों के इमाम कैसे बने। मैं 3, 4, 5, 6 बच्चों का थोड़ा थोड़ा तस्करा भी किए देता हूं, क्योंकि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले जो सहाबा थे, उम्र के लिहाज से वो 3 तरह के थे। बाज वो थे जब आए तो छोटी उम्र थी, बच्चे थे, और बाज वो थे जो आए तो जवान थे, और बाज वो थे जो हाजिर खिदमत हुए तो बूढ़े थे। अब मैं बच्चों की बात करने लगा, जो बच्चे आए। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन, मोहब्बत से रजी अल्लाह अन कह दीजिए, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिस वक्त आए हैं, उम्र 4 या 5 साल है। इनके वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब ने दामन पकड़ा और आन के कहा, बेटा मोहम्मद, ये आपका भाई अली है। उस वक्त मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, हजरत अली अल मुर्तजा की उम्र 5 साल थी। नबी अलैहिस्सलाम की गोद में बैठा दिया। हजरत अली 5 बरस की उम्र में, इस अब यूं समझ लें, हम बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, आम तौर पे कितनी उम्र होती है? यही 5-4 साल उम्र होती है। स्कूल बिल्डिंग का नाम नहीं, स्कूल इमारत का नाम नहीं, स्कूल चार दीवारी का नाम नहीं, ये तो उस इल्म के समंदर का नाम होता है जिसके सीने में इल्म हो। उस्ताद का नाम स्कूल है। उस्ताद जंगल में बैठा हो, वहां तालीम होती है। उस्ताद किसी बिल्डिंग में बैठा हो, वहां तालीम होती है। और अगर बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, अंदर जाहिल बैठे हुए हो, वो स्कूल बन सकता है जी। और अगर गांव का माहौल हो, कीकर का दरख्त हो,
टाली का दरख्त हो, बोहड़ का दरख्त हो, उसकी छांव के नीचे एक उस्ताद बैठा हो, गांव के बच्चे बैठे हुए हों और उस्ताद उन्हें पढ़ा रहा हो, अब बोलो स्कूल वो बिल्डिंग होगी या ये दरख्त की छांव होगी? वो दरख्त की छांव स्कूल होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में इल्म थे, अलग से किसी कॉलेज का नाम इल्म नहीं था, आप अपनी जात में इल्म थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 5 साल की उम्र में, और फिर सारा लड़कपन निगाहे नबुव्वत में गुजरा, आगोशे नबुव्वत में गुजरा, और कितने बड़े आलिम बने। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में हारिस सुदाई ने कहा था यतफज्जरुल इल्म मिन्हु, अली वो है जिनके रुए रुए से इल्म टपकता है, इल्म उनका चश्मा है हजरत अली का रुआ रुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले बच्चों में एक बच्चा वो है जिसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास बच्चे हैं, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर हुए, और ये आलिम कितने बड़े बने कि लोग कहा करते थे नेमा तर्जमानुल कुरआन, अब्दुल्ला बिन अब्बास ये कुरान करीम का बहुत बड़ा मुफस्सिर है, इनसे बड़ा मुफस्सिर कोई नहीं। हिबरुल उम्मत, उम्मत का बहुत बड़ा इल्म का समंदर वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। एक और बच्चे का जिक्र करने लगा, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बच्चे हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु बच्चे हैं, मेरे नबी की गोद में आए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बच्चे हैं, मेरे नबी की गोद में आए। ऐसा इल्म पाया, ऐसा इल्म, गर्दन कटी हुई नेज़े की अन्नी के ऊपर, लेकिन वहां भी लब हरकत कर रहे हैं और कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। क्यों? किसी आम आदमी के शागिर्द नहीं, कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम से इल्म पाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने वाले, मैं बच्चों के नाम लेता चला जाऊं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो, ये 10 बरस की उम्र में आए, बच्चे थे, बहुत बड़े आलिम बने। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, बल्कि आए क्या, पैदा हुए पहला दिन था, इनके वालिद ने उठाया और नबी की गोद में लाके रखा और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे का नाम आपने रखना है, गुड़ती आपने देनी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा, गुड़ती आप अलैहिस्सलाम ने दी। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आने वाले वक्तों में जमाने के इमाम बने, मकामे शहादत पाया। क्यों? बचपन नबी की खिदमत में गुजरा। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आने वाले बच्चे हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु, ये बच्चे हैं, पैगंबर की खिदमत में आए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने वाले बच्चे हजरत अमर बिन सलमा, ये बच्चे हैं, पैगंबर की खिदमत में आए। 6 बरस की उम्र थी, कुरान करीम के हाफिज बन चुके थे। खुद फरमाते हैं आना इब्न सित्ता से नील, मैं उस वक्त 6 साल का था, कुरान करीम को याद कर चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने वाले मर्द, वो तो मर्द हैं, औरतों को लीजिए, मैं औरत की मिसाल देने लगा हूं। 6 बरस की उम्र थी, वो औरत पैगंबर की खिदमत में आई और जमाने की खवातीन की इमाम बनी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। 6 साल उम्र थी, रुखसती हुई, रुखसत हो के पैगंबर के घर आई। 9 बरस उम्र थी, मुसलसल 9 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही और इल्म सीखती रही। अगर सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पढ़ने के अंदाज को ही बयान करना शुरू करूं तो मगरब तक वक्त ही खत्म हो जाए, लेकिन वो हजरत आयशा का
तरीक ही बयान ना हो सके। पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान की आयत पढ़ते, उम्मुल मोमिनीन उसका तर्जमा पूछती, उसका मतलब पूछती, और इतनी बड़ी जमाने की इमाम बनी। आका अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद अब सहाबा हाजिर खिदमत होते हैं, पर्दा लटका दिया जाता है, मसला पूछते हैं, 1 2 3 4 मसले पे मसले आ रहे हैं और हजरत आयशा बयान करती जा रही हैं। हत्ता के पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैतुल खला की जिंदगी से लेके पैगंबर अलैहिस्सलाम के अर्श तक की जिंदगी को हजरत आयशा ने बयान किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम तरीन टॉपिक, अहम तरीन उन्वान वो इल्म है, वो तालीम है। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई मौलाना नेमतुल्लाह साहिब ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के इस पहलू को उजागर किया है, इस पहलू को हाईलाइट किया है, इस पहलू को इस नई आबादी में, इस कच्ची आबादी में मुतारफ कराया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इल्म वाली मेहनत को लेके आगे चले। फरोग इल्म के लिए हम भी इनके दस्तो बाजू बने, हम भी अपने बच्चों को इल्म के लिए इनकी खिदमत में हाजिर कर दें, पेश कर दें। अगर ऐसा हो गया तो हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर, आपके तज़किरा सीरत का हक अदा कर दिया और उस पर अमलन कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करने के लिए तैयार है ना? हम इस इदारे के दस्तबाजू बनेंगे जी। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के जलाए हुए इस दिए को आगे ले चलेंगे। देखो, इल्म को आगे फैलाना इतना आसान है, अल्लाह ने इतना आसान किया। चिराग होता है ना, चिराग, इल्म को चिराग से तशबीह दी जाती है, चिराग से। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने चिराग कहा, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराज कहा ज़ाते नबुव्वत को, महबूब हमने आपको सिराज बनाया है। तो चिराग से चिराग आगे जलाने के लिए एक दिया जल रहा हो, दूसरे दिए को साथ जलाने के लिए बस उसके साथ जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। मेरे दोस्तों, ये एक लाइट जल रही है, आप दूसरी लाइट जलाना चाहते हैं तो तार को तार के साथ क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। बस ये जोड़ लगाते चले जाएंगे तो इल्म आगे खुद ब खुद रोशनी फैलाना शुरू करता चला जाएगा। आइए आज हम जोड़ लगाने का आज़म करें, हम इस इदारे के साथ जोड़ लगाएं और पैगंबर अलैहिस्सलाम के इल्म को आगे मुंतकिल करें। अल्लाह करीम हमें पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।